गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अंगद ओझा आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। और लास्ट सेशन में वी हैव डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन formulation. The formulation of the partial differential equation, the last session we have broadly two techniques by which we can formulate the PD. One of them is by eliminating arbitrary constants. By eliminating arbitrary constants. Second one is by eliminating arbitrary functions. Arbitrary functions. Arbitrary वही क्या जो मैंने एग्जांपल दिया, चावल। कौन सा एग्जांपल? चावल। और लास्ट टाइम हमने देखा भी था, कुछ फॉर्मुलेशंस किए थे इन द लास्ट सेशन। वी हैव फॉर्मुलेट ax plus by plus ab. Then what is the PD? PD becomes z is equal to x del z over del x. Last time y del z over del y plus del z over del x into del z over del y. और एक और हमने एग्जांपल लिया था, we have taken this example last class. मुझे पता है, आपको तो पता ही होगा ही, आप सब तो पढ़ने में अच्छे बच्चे हो। इसका पीडी क्या है था? ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। और इसका पीडी क्या बनाता है? व्हाट इज द पीडी ऑफ दिस सॉल्यूशन? दिस सॉल्यूशन z इज इक्वल टू del z over del y into del z over del x. So this is the partial differential equations. These are the partial differential equations. These are the partial differential equations. लाला कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जीवन में कोई तनाव तो नहीं? गणित तो बहुत ही सिंपल है। पीडी इज वेरी सिंपल टास्क. The order of this partial differential equation is 1. The order of this partial differential equation is also 1. But we have two constants. Two constants are there. Means the rule in the ordinary differential equations that if we have one arbitrary constant, the order is 1. If we have two arbitrary constants, then order is 2. So such type of rule is followed in ordinary differential equation, but in the partial differential equation this rule does not follow. Means what? Then what is the conclusion? We have drawn the conclusion in the last class. We have drawn that if number of arbitrary constants are equal to number of independent variable. हमने यही तो बताया था बेटा, if number of arbitrary constants, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में आता है, गेट में भी आएगा, ऑब्जेक्ट से सवाल आता है। इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स number of arbitrary constants are equal to number of independent variables, then it means what? Then order of partial differential equation is 1, otherwise it will be of higher order. Then order of partial differential equation, PD बोले तो partial differential equation is 1, otherwise it will be of higher order. लास्ट सेशन में भी हमने ये देखा था, ये रिकैप था बेटा, इट विल बी ऑफ हायर ऑर्डर, otherwise it will be of higher order. Are you getting it? Last time we have seen a question. ये क्वेश्चन इसमें भी आएगा, प्लस यूपीएससी में भी पूछ रहे थे, यूपीएससी मेंस यहां भी आ जाता है। और M1 M2 M3 का तो फेवरेट क्वेश्चन है क्या? फॉर्मुलेट पीडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था, आप लोगों ने किया नहीं होगा। क्यों नहीं किया होगा? बात बिल्कुल अच्छी है, आपका जीवन इतना व्यस्त है कि आपको समय ही कहाँ मिल पाता होगा इसके करने के लिए। आप सभी बहुत व्यस्त विद्यार्थी हैं, इसीलिए आपकी व्यस्तता को देखते हुए मैं करके देता हूं आपको, ताकि आप खुश रहें। आपका खुश रहना इस देश की प्रगति के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन? विद्यार्थी। तो अपन फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट पीडी।
फॉर्मुलेट पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहां से बेटा? y एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by eliminating arbitrary constant ABC. So there are three variables, one of them is independent and two of them are, one of them is dependent variable and two of them are independent variable. तो suppose z is the function of xy, suppose इसको अगर xy को इधर ले जाएंगे तो z इधर रहेगा, xy आप अपने मन से सप्लाई करिए, z आ जाएगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? सोचो सोचो, ये इक्वेशन क्या है? इज इट स्फीयर, इज इट सर्किल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन? नो नो नो, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्सॉइड, 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 इलिप्सॉइड। इलिप्स नहीं है ये टू डायमेंशन नहीं है। अगर इस इलिप्स को रिवॉल्व कर दें अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, इफ वी विल रिवॉल्व इलिप्स बाय इट्स मेजर एक्सिस, ऐसे घुमा दें इसको, ऐसे मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, मान लीजिए इलिप्स है, इसको हम ऐसे घुमा दें, इसकी चारों तरफ ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो आपको क्या एक सीट मिलेगी ना? इलिप्स को चारों तरफ घुमा दें, वी विल रिवॉल्व द इलिप्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस, तो आपको एक सॉलिड मिलेगा, सॉलिड सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इलिप्सॉइड। अरे समझिए ना, अंकल चिप्स है तो क्या हो गया? इलिप्स। अगर उसको घुमा दो तो क्या बन गया? रसगुल्ला। वो वाइट वाइट आता है ना, सफेद मिठाई शादियों में खाते हैं, आजकल नहीं खा पा रहे लॉकडाउन के चलते, कई लोग तो बड़ा डिप्रेशन में, कोई हमको बुला ही नहीं रहा शादी में, अब शादी हो तब तो बुलाए ना। तो जो रसगुल्ला होता है ना वाइट वाइट, वो एकदम 3 डायमेंशन, दैट इज इलिप्सॉइड। इसका हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इज देयर। यूपीएससी में 12 नंबर का पूछा जाता है मेंस में, जिससे आईएएस बनते हैं, और गेट में भी कई बार सवाल पूछा जाता है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। सपोज दिस इज द इक्वेशन 1, वी हैव टू एलिमिनेट ए बी सी, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। समझ रहे ना बात को? कुछ नहीं करना है। How can you determine? How can you find? You can easily determine, you can easily find the partial differential equation. Differentiate partially with respect to x. Assume z is the function of xy. Differentiate partially. Differentiate one partially with respect to x. Then what happen? 2x upon a square प्लस बाई तो अब x पे डिपेंड करता नहीं है ना बेटा, तो 0 हो गया, प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 2z अपॉन सी स्क्वायर। z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो बाई चेन रूल वी हैव डिफरेंशिएट z विद रेस्पेक्ट टू डेल z ओवर डेल x इक्वल टू 0। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्लास में ही बैठे हैं, आपका मन क्लास में है, तो समझिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। वी हैव एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। जो काम हमने x के लिए किया, द सेम वर्क कैन बी डन फॉर y। डिफरेंशिएट वन पार्शियली, डिफरेंशिएट वन partially with respect to y. Then what happen? 0 plus 2y upon b square plus 2z upon c square कितना बेटा? del z over del y is equal to 0. Now we are differentiating with respect to y ना, तो 2z upon c square तो आएगा ही, z को अगेन भी differentiate with respect to y chain rule। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स हैं, तनाव तो होना ही नहीं चाहिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा? y अपॉन बी स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। सो वी हैव इक्वेशन 1, 2 and 3। व्हाट इज आवर टास्क? Our task is to eliminate ABC from equation 1, 2 and 3। Equation 1
2 और 3 से क्या एलिमिनेट करना है हमको? वी हैव टू एलिमिनेट ए बी सी। करके देखो, आपके पास 2 मिनट का समय है, तब तक आप करके देखो और आप देखेंगे कि यहां से एबीसी एलिमिनेट हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। आपने कहा सर एबीसी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा है? बोले सर आप ही बताओ। आप ही ने कहा टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। हमने कहा लाला एबीसी एलिमिनेट नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले यहां देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं बेटे? बोलो बेटा 2। कांस्टेंट कितने हैं? 1 2 3। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, कांस्टेंट 3, दोनों बराबर या अनइक्वल? अनइक्वल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा या हायर ऑर्डर का? इट विल बी ऑफ हायर ऑर्डर। Then partial differential equation will be of higher order. Means you have to differentiate again. Either you can take equation 2 or you can take equation 3. केवल x और एक अगर आप इसको ले लेंगे then we have the partial differential equation in x only. If you are taking this equation then we have a partial differential equation in y only. जो मन करे आपका, आपका मन है ये तो मन की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं ना मन की बात, आपका मन जैसे करे। अगेन वी विल टेक दिस सपोज इक्वेशन 2। हमको एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा बेटा, पार्शियल और करना पड़ेगा बेटा। सपोज दिस बाय 2 डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 1/a² प्लस, अब यहां आपका फर्स्ट सेकंड से होगा लाला, फर्स्ट इंटू सेकेंड, 1/c² तो यहां ले लेंगे। बेसिकली क्या है? z इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स तो है ना ये। देखो तो z एज इट, इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में del 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस z का डिफरेंशियल del z ओवर डेल एक्स, और समझिए del z ओवर डेल एक्स एज इट है ही, और इक्वल टू 0। क्या हो गया बेटा? 1/a² प्लस 1/c²। क्या हो जाएगा बेटा? यहां देखिए z इंटू del 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज del z ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? दिस इज इक्वेशन 4। अब आप देखिए वाई सेकेंड एंड 4 यू कैन एलिमिनेट a एंड c आप एलिमिनेट कर सकते हैं सेकेंड और 4 से। कैसे कर सकते हैं बेटा? सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड देखिए कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू एलिमिनेट सेकेंड से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए यहां से x/a² इज इक्वल टू -z/c² del z ओवर डेल एक्स। इसको इधर ले आइए, देन इट इज c²/a² इज इक्वल टू -z/x। बोलो ना, कई लोग कह रहे होंगे सर आप खड़े हो जाते हो, हमको दिखता नहीं। कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आप बोर्ड के सामने ही खड़े हो जाते हो। बेटा टीचर कैन नॉट बी ट्रांसपेरेंट ना, कैसे? इसलिए मैं हट जाता हूं। del z ओवर डेल एक्स, ये c²/a² का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? यहां से c²/a² इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ बेटा, माइनस z इंटू del 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस del z ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको यहां जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट द वैल्यू ऑफ c²/a²? दैट इज -z/x। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c²/a² in this equation. Then what we have beta what? -z/x del z ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू पूरा माइनस क्या बेटा? z इंटू del 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस del z ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? माइनस से माइनस कट्टस कर देंगे, इसको इधर ही ले आइए। तो वी हैव इंटरेस्टिंग इक्वेशन, वी हैव del 2z ओवर, कई लोग इसे del स्क्वायर पढ़ते हैं। गंदी बात। अगर del स्क्वायर आपने पढ़ दिया ना, इसको मैं आत्महत्या कर लूंगा।
क्या कर लूंगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। हाँ मैं कह रहा हूं ये डेल स्क्वायर नहीं होता, डेल टू, बिकॉज दिस इज द ऑपरेटर, वी आर ऑपरेटिंग टू टाइम्स, दैट्स व्हाई डेल टू। ये डेल एक्स स्क्वायर होता है, एक्स इज द वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एक्स स्क्वायर। डेल इज नॉट द नंबर, नॉट द वेरिएबल, डेल इज द ऑपरेटर, इट इज द सिंबल, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, which is the required partial differential equation, which is the required partial differential equation, which is required partial differential equation, partial differential equation. What is the order of this partial differential equation? Is order is 2, order is 2। तो ये हायर ऑर्डर का है या नहीं, बोलो ना भाई, because number of constants are not equal to number of independent variables, so in this manner we have the partial differential equation of higher order. So this is the technique by which we can formulate the PD by eliminating arbitrary constants. And the technique is what? We can formulate partial differential equation by eliminating arbitrary functions. We can see it, we can see it, we can see by eliminating arbitrary functions। फॉर्मुलेशन ऑफ पीडी बहुत ही हलवा है, समझ पा रहे हो ना। फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस, आर्बिट्रेरी फंक्शंस क्या है, फंक्शंस को इलिमिनेट करके पीडी बनाना है। जैसे फॉर्म पीडी, क्वेश्चन करते हैं बेटा, फॉर्म पीडी जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज इस यहां में एफ इज द आर्बिट्रेरी फंक्शंस, यहां कांस्टेंट नहीं दिख रहे होंगे आपको, ये और भी दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा ना, एफ दिख रहा है, एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शंस, आर यू गेटिंग नॉट? सो यू हैव टू फॉर्मुलेट पीडी। आपके पास क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ये भ्रम है हमारे पास, ये कुछ नहीं है किसी के पास, हमारे पास केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। वी हैव ओनली वन टेक्निक नॉन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय विच वी कैन एलिमिनेट द फंक्शन एफ। तो डिफरेंशिएट पार्शियली, कैसे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू क्या बेटा, एक्स, देन व्हाट हैपन, डेल जेड ओवर डेल एक्स। इस f का करेंगे तो क्या करेंगे, f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका भी तो करेंगे ना, अंदर जो फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x प्लस 0, वाई स्क्वायर का 0, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डेल जेड ओवर डेल एक्स, द वैल्यू ऑफ डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये समझ रहे हैं एफ डैश कैसे आए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए समझ लीजिए। आप लोग सोचे, अगर समझ में आपके नहीं आया तो आप लोग अगली क्लास तक ऐसे ही दुखी रहेंगे, और आपके दुखी होने का मतलब है कि देश की प्रगति रुक रही है। विद्यार्थी को दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, साइन तो जानते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये जेड है तो डेल जेड ओवर डेल एक्स करें तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसका भी तो करना पड़ेगा ना लाला, तो 2x, वही तो यहां कर रहे हैं, 2x प्लस वाई का तो 0 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, बिकॉज वाई डजंट डिपेंड अपॉन x। So that's why this sign is f, that's why we have f dash x square plus y square, and x square plus y square is 2x plus 0, तो 2x into f dash x square plus y square। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमको क्या हासिल हुआ बेटा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करो तो क्या हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y, बोलो ना भाई। सो दिस बिकम्स व्हाट, 2y एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल जेड ओवर डेल वाई। किसका वैल्यू है ये, डेल जेड ओवर डेल वाई। लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, डेल जेड ओवर डेल वाई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है, एक ये। वी हैव टू एलिमिनेट फंक्शन एफ। तो समझिए एफ डैश की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दीजिए। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2y डेल जेड ओवर डेल वाई। यही तो आया ना बेटा। तो put the value of f dash x square plus y square in this equation, then what we have del z over del x is equal to 2x। f dash की वैल्यू कितनी आई है, बोलो कितनी आई है, कितनी आई है, कितनी आई है, कितनी आई है, 1/2y del z over del y, 1/2y डेल जेड ओवर डेल वाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा लाला, y को इधर ले आएंगे तो बाई डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड पीडी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बेटे ना, और अगले कल नेक्स्ट क्लास जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अगर ये सॉल्यूशन है तो अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन यही आएगा बेटा। क्या आएगा, जहां से हमने इसको पीडी को फॉर्मुलेट किया है, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। So this is the technique, by eliminating arbitrary functions you can find the partial differential equations। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बोलो बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, बोलो हाँ या ना, बोल दो ना भाई। वी कैन फॉर्मुलेट पीडी इजीली। वन अनदर एग्जांपल कैन बी टेकन एज, एंड फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, बोलो ना भाई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 del z over del x and del z over del y, these are the partial derivative of order 1 only। Another example can be taken, suppose z is the function of x upon y। अब आपको f को एलिमिनेट, हलवा del z over del x निकालते, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा बेटा, f dash x upon y, और x अपॉन वाई का x के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, 1 अपॉन वाई। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई एफ डैश एक्स अपॉन वाई। दिस इज डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, देन भी इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, जरूरत है, डेल जेड ओवर डेल वाई निकालेंगे तो हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बेटा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, बोलो ना भैया, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन वाई, दिस इज डेल जेड ओवर डेल वाई। वी हैव टू इक्वेशंस, इफ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देन दिस इज 3, तो 1 2 और 3 से हम एफ डैश को एलिमिनेट कर दें। बोलो यहां से एफ डैश एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तुरंत निकाल लेंगे और कह देंगे सर इतनी आ गई, तुरंत निकाल लेंगे। यहां से कितनी आ जाएगी, बोलो, फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ डैश एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। पुट वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स इन दिस इक्वेशन, देन व्हाट वी हैव डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स। वाई से वाई काटा, इसको इधर ले आओ, बाई डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, विच इज रिक्वायर्ड व्हाट, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो इफ फंक्शन इज 1 देन ऑर्डर इज 1, ऐसा लग रहा है अपने को, देखते हैं। सो यू कैन फॉर्मुलेट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्रेरी फंक्शंस एज वेल। एक सवाल और करने की आप लोग सवाल और करने की कोशिश करेंगे बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस। अगर जिसमें
कितने मिनट का हो गया? सो वी कैन फॉर्मुलेट पीडी। यहां फर्स्ट ऑर्डर का ही पीडी आ रहा है बेटा, फंक्शन एक था तो ऑर्डर एक ही आ रहा है। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो देखते हैं, दो फंक्शंस हैं तो क्या होगा। फॉर्मुलेट पीडी, एक सवाल और कर लेते हैं बेटा। फॉर्मुलेट पार्शियल, जो कई बार आया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है। इफ फंक्शंस आर टू, आर्बिट्रेरी फंक्शंस आर टू, z is the function of x plus iy plus x minus iy. f and g are arbitrary functions. Suppose this is 1. हमारे पास है क्या? कुछ नहीं है। we will differentiate partially with respect to x, then it becomes del z over del x is equal to, क्या हो जाएगा बेटा? f dash x plus iy. x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 plus 0 यानी 1 ही आएगा, प्लस g डैश x माइनस आई वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा। दिस इज द इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, देन व्हाट हैपन? del z ओवर del y, f डैश x प्लस आई वाई, y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो क्या आ जाएगा? i प्लस g डैश x माइनस आई वाई, क्या आ जाएगा बेटा? माइनस i। दिस इज इक्वेशन 3। देखो यहां y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस है। तो विद द हेल्प ऑफ 1, 2 and 3 यू हैव टू एलिमिनेट f and g। बिल्कुल वैसे ही हो गया जो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन था। हुआ या नहीं हुआ? यहाँ फंक्शंस दो हैं तो अब एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, मींस आपको एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली। अगेन वी विल डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम डिफरेंशियल करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा? हलवा है लाला, f डबल डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस g डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। बन तो आ ही रहा है साथ में। अगेन y के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? del टू जेड ओवर del वाई स्क्वायर, f डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, एक आई है, एक आई और आ गई तो आई स्क्वायर प्लस g डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, एक माइनस आई है, एक माइनस आई और आ गई तो माइनस आई स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसका मतलब? कुछ नहीं होगा। देखिए यहां से, अब देखो इन दोनों से एलिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर यहां लिखते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर, f डबल डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस g डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। यहां से क्या हो रहा है बेटा? del टू जेड, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, y स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस f डबल डैश एक्स प्लस आई वाई माइनस g डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। ये माइनस जैसे ही कॉमन ले लेंगे बेटा तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो हो गया ना? अब तो हलवा सवाल हो गया। क्या कर सकते हैं? आगे देखिए क्या है, कुछ नहीं है। देखिए f डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, g डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, इसकी वैल्यू उठा के यहां से रख दो, यहां रख दो तो क्या हो जाएगा? del टू जेड ओवर del वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर। इसको और इधर लिख लेंगे तो del टू जेड ओवर del एक्स स्क्वायर प्लस del टू जेड ओवर del वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which is required partial differential equation. What is the order of this partial differential equation is? बोलो ना, order is 2. फंक्शन कितने थे? 2. So this is the required partial differential equation, which is the required partial differential equation, required PD. So in this manner you can formulate partial differential equations by eliminating arbitrary constants and arbitrary functions as well. आप लोग प्रैक्टिस करिए और your questions and comments are welcome. और आप जुड़े रहिए स्टडी ग्राउंड पर अंगद ओझा जी के साथ, ताकि मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका जीवन आसान हो सके। धन्यवाद।